जय गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरु जी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी हर ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਡਿਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ
ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 47-50 ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਬਣਵਾਣਾ, ਔਰ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਉਸ ਲੱਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੈਣੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਬਟ ਬਣਵਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨੈਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਰ ਬਣਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत, जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का छोटे से छोटे ध्यान बात का भी ध्यान रखते हैं। उनकी कष्ट स्वप्न दर्शन में ही काट देते हैं। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपने अपने श्री चरणों में स्थान दिया, जगह दी, अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो आपने हमें 2025 से 10 जुलाई के दिन से जो आपने कृपा बरसाना शुरू की है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। राज अंकल का शुक्राना जो उनने मेरे सत्संग शेयर करके हौसला बढ़ाया, और इन जिनने आपका स्वरूप दिया उनका शुक्राना, उस पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना जिसमें आप रहते हैं गुरु जी। और आप जो सोच दे रहे हैं, आपने तो सोच बदल दी। हमारे सभी भाई बहन जो हमारे करीबी हैं कहने लगे हैं कि बहुत अंतर आ गया है मीनू तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बात में, बातचीत करने के ढंग में। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और यह सोच और यह ढंग तरीका हमारा पॉजिटिव है, और हम अब शिकायतें नहीं करते हैं, सबसे किसी और की शिकायत तो नहीं करते हैं। और बस थोड़ी बहुत ये जो चीज़ चाहिए है गुरु जी, उसमें ही अटके हैं, और वह जब मिलेगा, आप जब देंगे तभी मिलेगा, और जब उसका समय आएगा तभी मिलेगा। और गुरु जी बस ये जो अभी समय आया है, ऐसा समय कभी ना आए, किसी भी को ना आए ऐसा समय, क्योंकि ये मेरी प्रार्थना है। और उसके पहले ही आप उसको समझ दे दें तो अपने कर्म सुधार लेगा। तो अब गलतियों को क्षमा करें गुरु जी, संगत जी, हर जीव हमारी गलतियों को क्षमा करें। अभी भी जो हो रही होंगी उसके लिए भी क्षमा करें। गुरु जी का साथ, गुरु जी का दिन भर अनुभव होना गुरु जी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने जो जीवन में आकर जीवन बदलना शुरू किया है, अब लगता है कि अच्छा ही होगा और हम अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी बात आपकी करेंगे पे हमने ध्यान केंद्रित किया। होगा तो होगा, जो वही होगा जो आप चाहेंगे, पर हम करेंगे अच्छा, और यह सोच डाल दी गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, वह भी आपने बहुत अच्छे से कटवा देंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल को भी अपनी संगत बनाइए गुरु जी। अभी वो हम आपके सत्संग सुनते हैं तो वो आजकल ताना मारने लगे हैं कि अच्छा गुरु जी ये वो। आपको सब पता है गुरु जी, हम आप बताने वाले कौन होते हैं, आपको सब पता है। आप जानो, हम तो संगत तक अपना यह सत्संग पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं कि हमारे जैसे और भी कई लोग हैं, और उनको कोई ना कोई हमारी बात रिलेट होगी, उनकी बात हमें रिलेट होती है तो हमारी बात भी रिलेट होगी। इसलिए गुरुजी हम यह स्टेज पे बोल रहे हैं कि उनको भी अपने चरण शरण में संगत बनाई है गुरुजी, जिसमें कि पूरा परिवार ही हो जाए। बेटे अंकल को भी बनाना है, उसको आशीर्वाद, उस पर जो आप दया कर रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। माहौल में बदलाव हो गया है, घर में
घर के माहौल में आपस में प्रेम होने लगा है गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना कहें, बोलें, सोचें वह कम है गुरु जी, क्योंकि हर सांस में आपकी वो रहम छुपा है। जय गुरु जी। हमसे जो भी गलतियाँ हों उसे प्लीज़ सभी क्षमा करें। भगवान से प्रार्थना है, भगवान के चरणों में ध्यान रहे। धार्मिक होने के साथ साथ जो हमारी धरोहर है घर के परिवार की, उसको साथ लेकर चलें। और गुरु जी यह अरदास है कि बेटी अंकल आंटी भी शादी लायक है और बेटे अंकल भी शादी लायक है। और शादी कैसे होगी जब वो सेटल होंगे और सब चीज़ उनका सही होगा। आप उनको सेटल करें उन गुरु जी, क्योंकि समय तो अब जब होगी, लेकिन गुरु जी पहले सेट भी तो होंगे। आप प्लीज़ सेट करिए, उनका रूटीन सही हो जाए बेटे अंकल का गुरु जी। और हम क्या करें, आपसे अरदास के अलावा हमारे पास कोई और दिखता नहीं कि हम किससे बोले और क्या करें। आप ही रास्ता दिखाइए गुरु जी, हाथ पकड़कर आप जो सही रास्ते पे चलवाइए गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। आप सब करते हैं गुरु जी, स्वप्न दर्शन में ही इतना कष्ट कटवा देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। कल सत्संग नहीं कर पाए थे, शुक्राना सत्संग, और कल की पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। सोमवती के तुलसी जी के फेरे भी अच्छे से लगा लिए। गुरु जी आपने जीवन बहुत सरल बना दिया है। जो भी पूजा पाठ जो सोचो वो तुरंत करवा देते हैं गुरु जी, हाथ पकड़कर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भाव से, भक्ति से, बहुत आसानी से, बिल्कुल बिना किच के, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी के चरणों में। मेरी हर सांस, हर वह चीज़ जो हमें गुरु जी को प्यारी है वह समर्पित, और मेरे बुरे कर्मों भी समर्पित गुरु जी, और आगे के लिए अच्छी सोच के लिए प्रेरित करें गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम भी किसी के काम आ सकें गुरु जी, ऐसे हम अपने कर्तव्य करें और अपने कर्म करें, और हम आपका नाम जो हमें मुख पे आया है और दूसरों के मुख पे ला सकें गुरु जी। ऐसा करें हम, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंत्र जाप के साथ हम यह सत्संग को विराम देते हैं, और जो भी गलतियाँ हैं उसे क्षमा करें संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी आज तारीख है संगत जी 14 जून 2026 और वार है संगत जी आज रविवार, और समय हो रहा है दोपहर के 11 सुबह के 11:02। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पाके मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह मैं अमृत वेला उठी ही नहीं। मेरी बहू ने मुझे उठाया था, अलार्म भी बजा था संगत जी, पर शरीर में ना थकावट सी महसूस हो रही थी, तो मैं उठी नहीं। और फिर मैंने सुबह उठकर नहा धोकर मैंने शिव पुराण का पाठ किया संगत जी, और फिर मैंने गुरु पा का शुक्राना किया। और फिर संगत जी मैं सैर करने के लिए आज पार्क में चली गई, क्योंकि 20 दिन हो गए थे लगभग मैं पार्क नहीं जा सकी थी, क्योंकि मैं गिर गई थी संगत जी, आपको मैंने सत्संग शेयर करते समय बताया था। तो अब मेरी बाजू वगैरह में आराम है, तो आज मैं सैर करने के लिए चली गई। वहाँ से आई तो संगत जी मैंने फ़ोन खोला तो गुरु पाक बड़ा मंदिर की वीडियो बनी हुई आ गई, उसमें गुरु पाक, उसमें संगत जी मूल मंत्र का जाप चल रहा था। मैंने 2 बार संगत जी वो मूल मंत्र का जाप सुना और गुरु पाक की आरती सुनी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, फेसबुक पर गुरु पाक का मैसेज आ रहा है, आंटी मुझे सब पता है, तू क्या सोच रही है, आजकल तेरा मन कुछ ज़्यादा ही विचलित रहता है। हाँ संगत जी, मन तो बहुत विचलित रह रहा है, गुरु पाक सही कह रहे हैं, तेरे अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है। गारंटी देता हूँ MSG के समाप्त होते ही आज तुझे मेरे दिव्य खुशबू आएगी, आज तुझे मेरा एहसास होगा, आज मैं तेरा 200% कल्याण कर दूंगा। आज तू यहाँ से खाली हाथ किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। सिर्फ एक बार सच्ची श्रद्धा से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। आज से तेरे जीवन में सुख का आगमन ना हो जाए तो कहना, और हाँ, अगर तू मुझे प्यार करती है तो इसे और भक्तों के साथ तुरंत शेयर कर। गुरु का ये मैंने मैसेज आपका जो आपने भेजा है वो मैंने शेयर कर दिया है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। गुरु का इस पूरे परिवार की तरफ से, वैसे तो ये आप ही का परिवार है, इस मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। आपके दोतरे अंकल की तरफ से आपका शुक्राना, आपकी दोनों बहुएं आंटियों की तरफ से आपका शुक्राना, और दोनों दोतरे अंकल की तरफ से गुरु का आपका शुक्राना, और आपकी पड़तोतरी की तरफ से, आंटी की तरफ से आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, मैं तो गुरु पास से यही प्रार्थना है कि वो सारी संगत के सिर पर अपने हाथ रखे और सबके घर में सुख शांति बनी रहे और सबका भला हो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। गुरु का मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे घर में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। गुरुजी सँभालते भी हैं, लेकिन अब इस समय बहुत ज़्यादा भारी विपदा आ पड़ी है, क्योंकि हम लोग जो हैं दुकान भी हमारी रेंट की है और घर भी हमारा रेंट का है। तो संगत जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होता था, जो आज की डेट में मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, एक अंगूठी तक भी नहीं है मेरे पास। तो सब खत्म हो चुका है। और गुरुजी, पता नहीं और कितना नींबू की तरह मैं नहीं, और मेरे में रस नहीं है। मैं बाबा यही कहती हूँ, गुरुजी अब संभाल लो बस। तो हमें जो दुकान है ना, उसका हम लोग किराया टाइम पे नहीं दे पाते थे। कुछ महीनों हमारा किराया टूट भी जाता था, कभी चला जाता था तो जाता था। उसके जो ओनर है, उन्होंने लिख के नहीं रखा हुआ था कि मेरे पास आता है। और उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। वो हम पे कह रहा है कि कम से कम 85 लाख बता रहा है हमें कि तुमने हमारे 85 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि 6 साल से तुमने हमें कोई रेंट ही नहीं दिया। और संगत जी, कोई भी मकान मालिक या दुकान मालिक ऐसा होगा जो आप रेंट नहीं दे रहे हो, आपको ऐसे ही रख देगा। तो उसमें टूटा है, हाँ, हमें देना होगा, 8-10 लाख रुपए देने होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो कहता है या तो मेरे पास अपनी कोई प्रॉपर्टी रखो या कुछ रखो। तो संगत जी, हम कहाँ से प्रॉपर्टी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना दुकान है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ से भी निकाल दिए गए तो पता नहीं हम कैसे होगा, क्या होगा हमारा। तो मेरे अंकल वही ये बोले, मैं अपने अंकल से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे अंकल और मेरे बीच में भी बहुत लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने मुझ पे हाथ वगैरह भी उठाया था, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा आज आज मैंने उनसे बात करी, तो वो यही बोले कि वो ना हमें माल नहीं निकालने देगा शायद। मैंने कहा शायद गुरुजी की कोई मर्जी होगी इसमें, क्योंकि हम इतने साल से इस दुकान पे है ना, पनप पा रहे हैं ना कुछ है। और जब जब हमने जिससे भी सुना था, उस दुकान में ना कहते हैं बहुत नेगेटिविटी है, और वो पनप नहीं पा रही है, पनप नहीं पाती थी दुकान। लेकिन संगत जी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम कोई और दुकान देखते, या पैसा, सबसे पहले तो पैसा होना ज़रूरी है। और चली भी थी दुकान तो सबकी हाय हमारे साथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये दुकान भाई ने आपने उस पे खोली थी, तो हमें यही था कि हम दुकान पे बैठेंगे और हमें खर्चा मिलेगा। संगत जी, जब वो दुकान नहीं चली, वो परेशान हो गया, उसके बाद वो दुकान जो थी वो उसने हमें दे दी। तो उसके मेरे अंकल ने साड़ियों का माल खुद से भरा, साड़ियाँ सारी वो ले गए थे, सब कुछ ले गए थे। बस नीचे जो दुकान पे सूट थे वही रखे थे। तो मेरे अंकल ने सब कुछ उसे दोबारा से जोड़ा, लेकिन कि वो हाय ऐसी थी ना कि वो हम पनप ही नहीं पाए। 1 साल हमारा अच्छा चला था संगत जी, 14 में हम बहुत अच्छे से रहे, उसके बाद से हम दिन प दिन खत्म ही होते गए हैं। और गुरुजी का मुझे लगातार मैसेज आते हैं, लगातार, कि तेरे घर पे एक अंकल आंटी हैं जो तेरे घर पे कुछ कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत मतलब इधर उधर भाग रहे हैं तुझे बर्बाद करने के लिए। तो मैं जानती हूँ संगत जी वो कौन है, लेकिन मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी आप संभालो, आप देखो कौन है। मुझे तो नहीं पता ना वो कौन है कौन नहीं है, आपसे बड़ा परम पिता परमात्मा कौन है। गुरुजी संभाल लो, बस मैं यही अरदास करती हूँ, मेरे परिवार को संभाल लो, हमारे व्यापार को संभाल लो। यहाँ तक कि संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, और मैं जैसे मूडे पे भी बैठती हूँ ना, तो एकदम से उठ नहीं पाती, कभी कभी रोना भी आता है कि देख कैसी हालत हो गई है, क्योंकि दुखों ने खत्म कर दिया बिल्कुल ही। और मैंने जैसे कैसे करके बहुत मतलब सोचा कि नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने काम शुरू करा खाना बनाने का। तो आज की डेट में संगत जी, मैं खाना बनाने का काम कर रही हूँ। जैसे मैंने सोचा था कि मैं रोटी के ऑर्डर नहीं लूँगी, क्योंकि रोटी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता खड़े-खड़े, लेकिन मैंने सिर्फ़ फ्रोज़न मोमोज़ का ही सोचा था कि वही करूँगी। और इस टाइम मैं तो मोमोज़ का डेली मेरे पास ऑर्डर नहीं आता संगत जी, कभी आ भी जाता है, कभी 100 भी, कभी 200 भी, कभी 300 भी। और मतलब कभी-कभी तो बूंदी भी नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो वो मोमोज़ के साथ-साथ ना खाने का मतलब जैसे दाल और मील वग़ैरह का काम करना पड़ेगा। तो मैंने
यही काम मतलब डाल दिया था कि जैसे कड़ी वड़ी जो भी सब्जियां हैं सब डाली उसमें कि मेरे पास काम आए, कैसे भी करके कमाऊं। तो अब रोटी के ऑर्डर आ रहे हैं तो संगत जी वो भी मैं बना ले रही हूँ कि 2 पैसे हाथ में आए। तो बस मेहनत करना हमारा काम है। मैं ये नहीं कहती गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे बैठे-बैठे दो। संगत जी मैं मेहनत का तो वो अपने गुरुजी से माँग सकती हूँ ना कि मुझे दो। और बस आप सब अरदास लगाइए कि हमें हमारे लिए गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा हो। अगर इस दुकान से हम निकलते तो कोई अच्छी ही जगह हमारे लिए देखी हो जहाँ हम पनप सके। संगत जी मेरी बेटी का भविष्य भी बहुत अंधकार में, बड़ी वाली जैसे कैसे करके शादी करी मामा ने ही करी उसकी, और आज वो अब गुरुजी की कृपा से उसका घर मतलब ठीक है, सेट हो रही है। बस गुरुजी अपनी कृपा उस पे रखे। थोड़ी बहुत तो सबके घरों में दिक्कतें होती हैं, तो गुरुजी ने सँभाला है, ये भी गुरुजी सँभालेंगे मुझे पता है। परमपिता परमात्मा बैठा है ना, वो बहुत बड़ा है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए कोई न कोई रास्ता ज़रूर खोलेगा। मुझे उन पे पूरी पूरा उन पे भरोसा है संगत जी। मेरे अंकल बहुत टूट गए हैं, आज वो कहते हैं मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं ख़त्म, क्योंकि संगत जी इस उम्र में भी बहुत मुश्किल है, अगर कोई सहारा ना हो, कुछ ना हो और हमारे साथ कोई नहीं। मुझे पता है कोई है या नहीं है, सिर्फ़ गुरुजी तो हैं ना। और पीछे से सारे बातें बनाते हैं, दुकान बंद कर देनी चाहिए इनको, ये जोड़ ही नहीं सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं मुझे आज पार्लर गए हुए भी कम से कम 2 साल हो गए होंगे, 2 ढाई साल से मैंने यहाँ तक कि फेशियल तक नहीं करवाया, मैं कपड़े तक नहीं खरीदे, कुछ नहीं। चप्पल भी अभी मैं उस दिन यहाँ गई, 200 की चप्पल मैं अपने लिए, ₹200 की चप्पल क्या होती है वो लेकर आई। मुझे अपने लिए शौक ही नहीं है, मुझे मेरे सारे शौक खत्म हो चुके हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा तू तैयार होके रहा कर, अच्छे कपड़े पहन के रहा कर, कहाँ से रहूँ संगत जी। जब गुरुजी देंगे तो मैं करूँगी। किसको अच्छा खाना, अच्छा घूमना पसंद नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ उसको, और अब मैं जो काम कर रही हूँ अभी मुझे उसमें कोई प्रॉफ़िट अभी नहीं है, क्योंकि नए-नए काम में प्रॉफ़िट नहीं होता है, उसमें तो फिर सिर्फ़ लागत ही होती है। बाकी गुरुजी करेंगे जो करेंगे, क्योंकि धीरे-धीरे मैं कर ही रही हूँ। जो सामान मुझे चाहिए होता है संगत जी मैं वो मँगवा-मँगवा के रखती हूँ। फिर अब तो मैं दाल, सब्ज़ी सबका ऑर्डर ले रही हूँ। बस मुझे यही है कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपने हाथों, और जिसको मैं जब भी मैं खाना बनाती हूँ मंत्र जाप करती हूँ मन में, और सबको ही अभी तक सब कुछ पसंद आया है। स्टार्टिंग में था कि थोड़ा-सा ना मैंने नूडल्स बनाए तो मैंने ये था कि नहीं मुझे अजीनोमोटो नहीं डालना है, क्योंकि नुकसान देता है ये तो। लोगों को जैसे कुछ बाहर के खाने की ज़्यादा ही वो है, तो उन्होंने कंप्लेंट करी, उसके बस एक वही थी। उसके बाद मैंने नूडल्स वगैरह में अजीनोमोटो डालना स्टार्ट किया, तो उससे स्वाद अच्छा आ जाता है। तो बस मैं अब बना रही हूँ तो मुझे हर कोई दाल सब्ज़ी सबके लिए, और मेरे साथ मेरी बेटी बनवाती है छोटी वाली, उसके हाथों में तो सी साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। और मैं उन्हीं को नमस्कार करती हूँ कि मेरे हाथों में आप स्वाद लेकर आओ गुरुजी। आप, और मेरा मन ही मन में मंत्र जाप चलता रहता है बनाते हुए कि गुरुजी इसको आप लंगर प्रसाद की तरह ही बना दो, जिसके पास भी जाए वो खा के बस स्वस्थ और खुश रहे। तो बस गुरुजी मेरे घर को सँभाल ले, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को कुछ भी ना होने दे। बस अब मेरे परिवार पर, हम सबके परिवार पर अपना हाथ रखे। अभी भी गुरुजी यही कह रहे थे तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है जो आया हुआ है, और जिसने कर रखा है मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको ना बिल्कुल तू देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। लेकिन संगत जी जब तक हम बर्बाद हो जाएँ तब तक क्या फ़ायदा। मैं कहती हूँ गुरुजी बचा लो, मेरे घर को आप ही ने बचाना है, बचा लो। मैं अपनी छोटी बेटी आंटी को बोलती हूँ कुछ करने के लिए, व्लॉग बनाने, वो नहीं कर पाती है। वो पता नहीं क्या उस पे कुछ वो केयरलेस बनती है या नेगेटिविटी होती है, बस फ़ोन पे लगने के बाद भी नहीं। और उसने दुकान पे ना ऑनलाइन अच्छा खासा काम करने के बाद भी पीछे हट गई। पता नहीं क्या ऐसा होता है संगत जी। लेकिन मुझे पता है मैंने पीछे नहीं हटना है, मैंने जैसे भी करके मैंने काम करना है। मैंने अपने अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ करना है। बस गुरुजी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत पता है कि शरीर में बहुत, और सँभाला संगत जी उन्होंने हुआ है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, खड़ी नहीं हो पाती और बहुत सारी दिक्कतें। परसों छोटी बेटी पे पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी संगत जी मेरे साथ। और कल का दिन तो ऐसा था कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी, मेरी बैक में पेन और ये। फिर मैंने गुरुजी के पास ही बैठ के उनके पास ही बैठ के बातें-वातें करती हूँ, और बस उन्होंने ही सँभाला था जैसे-कैसे। बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं, और वही सँभाल भी रहे हैं संगत जी। जब कहते हैं ना दर्द देते हैं तो दवा भी वही देते हैं, तो वो शायद ये मेरे और
परीक्षा का टाइम है जो चल रहा है, तो गुरुजी देखना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी का साथ नहीं छोड़ूँगी। उनकी बाँह पकड़े रखूँगी, वो जितना भी, यहाँ तक कि वो मुझे सड़क पे ले आएँगे ना संगत जी, तो भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे अब उनका साथ छोड़ना ही नहीं है। वो जितनी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं ले ले, कोई बात नहीं। मैं आज तक परीक्षा देते आई हूँ तो दूँगी संगत जी। बस आप सब भी अरदास लगाइए, मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए। और पता है क्या, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी और अभी भी है कि मैं जो जल प्रसाद है ना, वो जल प्रसाद है, मैं वो ना वही नहीं कर पा रही थी, मतलब घर में नहीं छिड़क रही थी कुछ, और मेरे लोटे के अंदर ना अंदर से काला-काला सा हो गया था। तो संगत जी मुझे नहीं पता वो क्या था, तो मैंने सोचा भी कि फ़ोटो भेज के पूछूँगी कि कैसे है, तो मैंने उसे ना पतंजलि से बहुत अच्छे से अंदर से साफ करा कि वो साफ हो जाए। अब गुरुजी कह रहे तुम मंदिर आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मंदिर आ, देख फिर तेरे से कैसे कष्ट खत्म होंगे। तो गुरुजी बुलाने वाले तो आप ही हो ना, आप बुलाओगे तो क्या मैं नहीं आऊँगी? मैं तो भागी-भागी आऊँगी, बस आप बुलाओ कैसे भी करके संगत जी। यही मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी बस सब ठीक कर दो। और अभी बीच में क्या था, मुझे पता है मेरे घर पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, क्योंकि कहते हैं ना, मैंने सत्संग में ही सुना था अमावस और पूर्णमासी में बहुत नेगेटिविटी होती है। तो संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी है, और उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, मेरे पास मैंने ना परसों गैस ऑन करी, तो पीछे से अचानक से मेरे सिलेंडर, मतलब पीछे से ना अचानक से आग निकलना शुरू हुई। फिर मैंने उसको बंद करके फटाफट नीचे से सिलेंडर नॉक कर दिया, फिर दोबारा वही हुआ, और फिर मेरे हाथ पैर तो फूल गए कि मैं क्या करूँ। मेरे को ये भी नहीं था कि मुझे नीचे से बंद करनी है, मैंने फटाफट फिर नीचे से फुटेमत बंद करी, तो जो पीछे का वो था ना, वो भी उसका जल गया। तो मैंने अपनी बेटी से यही बोला कि तू ना तू गैस के पास मत जाना, सामने खड़ी रहना, गैस ऑन करके अंदर मत आना। और ना मैंने वैसे भी इंडक्शन पे ही काम कर रही हूँ आजकल, तो समझ जी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं हमारे घर के। अगर दुकान ही नहीं रही तो हम कैसे करेंगे? और सबकी हाय तो हमारे साथ है, सब यही बाबा बोलते हैं कि तुम दुकान बंद कर दो, बंद कर दो। और बहुत कुछ हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ये जोड़ नहीं सकते हैं। और संगत जी जिसकी दुकान पे दिन में कभी 2000, कभी 1000, जिसका 2 लाख का महीने का सिर्फ दुकान का ही खर्चा हो, कभी 2000 आ रहा है, कभी 3000, वो क्या वही माल लाएगा, क्या ही दुकान का देगा, क्या ही घर का देगा। फिर भी गुरुजी ने संभाला हुआ है संगत जी। व्यापारी तंग करते हैं, व्यापारियों ने भी केस कर रखे हैं, बहुत परेशानी हमारे साथ चल रही है, और मुझे पता है वो गुरुजी ठीक करेंगे, और हर हाल में वो ठीक करेंगे। कभी बटरफ्लाई के रूप में भी दिखते हैं, और मुझे ना, मुझे वो भी दिखता है, क्या कहते हैं, व्हाइट कबूतर भी आजकल दिख रहे थे। और उस दिन पता नहीं, मैं जैसे ही आंखें बंद करूँ तो मुझे लगे कि दुकान पे आग लग रही है, तो मैं बार बार गुरुजी से अरदास लगाई जा रही थी, और गुरुजी ने संभाल भी लिया था। संगत जी बहुत दिक्कतें हैं हमारे साथ, बस गुरुजी संभाल लो। गुरुजी अगर आपने नहीं संभाला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और मुझे पता है संभालेंगे। बाप कभी अपने बच्चों को कभी कष्ट देते हैं, बस वो मेरे थोड़े से कर रहे टाइम चल रहे हैं, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गुरुजी मैं बहुत बहुत थक गई हूँ परीक्षा दे दे के। मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मैंने जब से होश संभाला है मैंने एक पल सुकून का नहीं देखा, तब से ही मैं परीक्षा दे रही हूँ। ना मुझे मेरे बच्चे समझते हैं, ना मुझे मेरा अंकल समझते हैं। जिसका मन करता है मेरे साथ फालतू बोल के चल पड़ता है। तो मैं अब थक गई हूँ गुरुजी, बस अब आप देखो ना क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरी गुरुजी आपसे एक और अरदास है, अगर कुछ नहीं ठीक हो सकता ना, तो आज हम सोए तो हम तीनों, मेरी बेटी को और मुझे, मेरे अंकल को और मेरे ब्रूनो को, हम चारों को उठा लेना। बस मेरी यही अरदास है, कुछ भी ऐसा करके हम चारों ही रात में खत्म हो जाएं। बस अगर आप नहीं दे सकते, आप इतना तो कर सकते हो, और वो करेंगे मुझे पता है। लेकिन मैं, जब इंसान टूट जाता है तो वो क्या करे, मैं इस टाइम बहुत टूटी हुई हूँ। तो मैंने सोचा मैं सत्संग करके आप संगत जी से ही सब शेयर करती हूँ, शायद आप सबकी दुआओं में भी ताकत हो। गुरु जी सुने आपकी अरदास से, बहुत ज़रूरत है मुझे गुरु जी आपके, बहुत ज़रूरत है। आप बस और नींबू की तरह मत निचोड़िए, क्योंकि किसी में भी हमें रस नहीं बचा है। गुरु जी प्लीज़ इस घर को संभाल लो, हमें संभाल लो। और गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वालों को बिल्कुल खत्म कर दो। इन्हें जो करते हैं ना, इन पे पलटवार करो हाथ के हाथ, ताकि इन्हें पता चले कि इन्होंने क्या किया है। गुरुजी ने मुझसे एक और बात, उस दिन मैसेज आया कि तूने कोई मन्नत मांगनी हुई है तो तूने वो पूरी नहीं करी, तो तू उसकी माफ़ी मांग।
तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मैंने कभी भी कोई मन्नत मानी हो मैंने पूरी नहीं करी है, उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दो। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं, आज भी उनके थे तेरे पैसों की बहुत दिक्कत है, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो बस आप मेरे घर को सँभाल लो, सब ठीक कर दो इधर। कभी-कभी मन करता है जैसे टीवी में देखती हूँ बागेश्वर धाम जाऊँ, कहीं जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कौन-सा दर, लेकिन मुझे पता है मैं गुरुजी ही ठीक करेंगे। फिर गुरुजी का मैसेज आया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, मैं ठीक करूँगा। शायद इसी में कोई अच्छा होगा। बस वो यहाँ से अगर हम इस दुकान को छोड़ते हैं तो इसकी जगह हम अच्छी सी दुकान कोई दे जिसमें वो हो, उनका स्वरूप हो, और वही हमें बरकत भरी सब बरकत दे दे हमें। गुरुजी हमें संभाल लो, बस टूटने मत दो, क्योंकि मेरे साथ सब देख के मजे लेते हैं, कोई किसी के दुख में दुखी नहीं होता। हमारे पीछे वैसी बहुत बातें बनती हैं। तो बस गुरुजी संभाल लो इस घर को। तो बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, संभाल लो गुरुजी। अरदास है फिर से आपसे कर रही हूँ, मेरे परिवार को संभाल लो गुरुजी, और मुझसे जो भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। संगत जी आप भी माफ़ कर दो। मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उससे पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। हे प्रभु, हे परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु परमात्मा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आपका वरद हस्त सर पे है। गुरु जी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु परमात्मा, आपने अपनी बच्ची को बहुत 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 स्टेप बाय स्टेप आपने, जब से आपने हाथ थामा है, संगत जी गुरुपा ने जब से हाथ थामा है, तब से स्टेप बाय स्टेप गुरु जी ने मेरे जीवन का अंधकार कहूँ, जीवन का दुख दर्द कहूँ, और जीवन की बहुत बहुत मुसीबत जो थी, उसमें से गुरु जी ने मुझे धीरे 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 सब में से बाहर निकाला। और कोई नहीं विश्व का, मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। परमात्मा ने हमारे कई जन्मों के बुरे कर्म भी काटे हैं। गुरु जी ने हमारा कष्ट भी अपने ऊपर 90% लेके हमें 10% ही भुगतने दिया है। और मैं अपनी जर्नी का हूँ संगत जी, तो गुरु जी ने घर में इतना, ये लास्ट 10-12 साल से जो घर में जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत बार शेयर भी किया है। जो कुछ अच्छा करने जाओ तो सामने वाला अपने घर में
किसी को लाके बुरा करा के जाता है, ऐसा बहुत कुछ हुआ। और गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि तेरा भोलेपन का फायदा सब उठाते हैं। तो ये भी है, कोई बोलता है कि ये अच्छा हो जाएगा तो मैं तुरंत करती थी, तो उसमें बहुत कुछ हुआ। उसमें गुरुजी ने कहाँ से मुझे बाहर निकाला है, ये मैं ही, गुरुजी ही जानते हैं। बहुत सा तो मैं नहीं जानती हूँ, गुरुजी जानते हैं। तो ये सब में से गुरु पाप ने ये बच्ची को बहुत मुसीबतों से बाहर निकाला, उसका शुक्राना 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 है। गुरुजी महाराज, घर में से भी आपने बहुत कुछ चीजें बाहर फेंकवाई, जो हमें पता भी नहीं था, वो आपने बताया। उसके लिए भी आपका कोटि 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 शुक्राना 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 प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा संगत जी, हम सबके लिए परमात्मा है, गुरुपा है। और जब कोई तबीयत ठीक नहीं होती है, ऐसा मूडलेस होती है और कुछ होता है, गुरुजी डॉक्टर बन के आ जाते हैं। कब कोई सूझ नहीं रहा, कुछ नहीं है, मैं सुनमुन बैठी हूँ, तब माता पिता बन के आ जाते हैं। जब एकदम अकेलापन महसूस करके किसी मतलब सब बातों में घुट रही हूँ, तो वो सखा बन के आ जाते हैं। संगत जी, मुझे यही बताना है कि गुरुजी ने मेरा इतना इतना किया है ना, कि मैं उसकी गिनती तो कर ही नहीं सकती हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे जीवन से दूर होगा और मेरे जीवन में वापस कभी खुशी का दिन आएगा, ये मैंने सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन प्यारे गुरु पिता ने सबसे हाथ थामा है, मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना सहारा दिया है, इतना मुझे संभाला है। बिखरा हुआ परिवार गुरुजी ने एक किया है। गुरुजी ने सबके मन अलग अलग चारों दिशा में अलग अलग था। धीरे धीरे गुरुजी ने सबके मन एकत्रित होने के लिए सबको तैयार किया है। जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, वो अभी बात कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले तो मेरे जीवन में सब्र और धैर्य रखना सिखाया, और गुरुजी ने अनेक जन्मों का पाप कर्म जो भी था वो दूर किया है, उसमें से बाहर निकाला है। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और अब गुरुजी ने खुशियों के दिन दिखाए हैं। अब गुरुजी एक जीवन की नई दिशा में ले जा रहे हैं। जीवन जीने का महत्व समझाया है। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है, मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जो तू नहीं कर सकता है। तुम हर काम में सक्षम हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें सक्षम बनाया है। हाँ जी गुरुजी, जरूर बनाया। लेकिन अभी अभी मैं पूरा हार गई थी, तो हारी हुई बाजी भी आपने संभाल ली प्रभु। तो वापस मेरे में आपने आपकी शक्ति की ऊर्जा भर दी। अब वापस मुझे हिम्मत से खड़ा होने की ताकत आपने दी है, भरोसा दिया है, एक मेरे में आत्मविश्वास जगाया है प्रभु। आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस तुम्हें पहचानने मात्र की देरी है। जिस दिन ये बोध तुम्हें आ गया, तुम्हारा जीवन एकदम शांत और जल के समान निर्मल हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल आप एक गुरु बिन तो ज्ञान है ही नहीं जीवन में। पल पल आप एक टीचर के जैसे साथ में रह के सब समझाते हो, हर पल साथ में रहते हो, और हमेशा हमेशा एक धैर्य देके सामने सब दिखाते हो कि ऐसा कर। तो गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना है आपका बाबा। मैंने तो सब समेट लिया था, सब हार गई थी, जीवन ही समेट लिया था प्रभु, लेकिन आपने वो सब संवार लिया दाता।
ये आप कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राना कर, तुझे दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मजाक में मत लेना, आपसे ठीक 8 मिनट बाद तुझे फोन पर खुशखबरी आएगी। सच्चे मन से लिख जय गुरु जी। बाबा मैंने लिख भी दिया, और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे बार बार कहते कहीं आवाज उठाना है, वहां तेरे को आवाज भी उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं, मैं पहले से ही जल्दी किसी के सामने नहीं बोल देती हूँ। देखती हूँ मुझे धोखा हो रहा है, वही मुझे दर्द दे रहा है, फिर भी मैं चुपचाप सह लेती हूँ। और गुरु जी का ही शब्द है ये, तूने दर्द छुपाना सीख लिया है, इसलिए लोगों को लगता है तू खुश है, लेकिन मैं तेरी हर तकलीफ जानता हूँ। अब चिंता छोड़ दे, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। और मेरे जीवन में नई खुशियाँ देने का शुक्राना, मुझे नया जीवन दान देने का शुक्राना, बच्चों को सफलता की ओर आगे बढ़ाने का शुक्राना, बच्चों के सर पे वरद हस्त रखने का शुक्राना। बेटी आंटी के लिए भी आपने बाबा बहुत कुछ किया है, उसको भी आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बेटी आंटी की ओर से भी आपका शुक्राना है, बेटे अंकल की ओर से भी आपका शुक्राना 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 है। गुरु जी महाराज, जहाँ मैंने जो नहीं भी सोचा है वो भी आपने मेरे तकदीर में लिखा है प्रभु, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अगर तुझे लगता है 1% भी तो मेरे आशीर्वाद से तेरे परिवार का कल्याण किया है, तो आज गलती से भी इस संदेश को आलोचना मत करना। बाबा मैं जरा भी ना कर सकूं, बाबा मैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं कृतज्ञता ही व्यक्त करती हूँ दाता। ये मैं सोचा भी नहीं था बाबा, आपने वो किया है मेरे जीवन में, और आपने मैं कौन से शब्दों में शुक्राना करूं बाबा। आपने परिवार को आपके आशीर्वाद से कल्याण किया है प्रभु। मैं गलती से नहीं, मैं सपने में मैं सोच भी नहीं सकती बाबा, मैं कभी आलोचना न करूं दाता। और गुरु जी मेरे से ऐसा कुछ होता है तो मुझे क्षमा करना, ऐसा मैं कभी नहीं। ये कौन करता है? परमात्मा, ये महाशिव प्यारे गुरु पिता ही कर सकते हैं बाबा। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है और कोई कर नहीं सकता है। आप ब्रह्मांडों के मालिक हो, सचखंड के मालिक हो प्रभु, आप ईश्वर साक्षात परमात्मा हो, और वो हमारा ऐसा कर रहे हैं प्रभु। हम बहुत बहुत नसीब वाले हैं गुरु जी महाराज, जो आपने हमें अपना सानिध्य में बिठाया है, अपने चरणों में बिठाया है, अपने हमारा हाथ थाम के अपने संगत बनाई है। यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है बाबा, अनमोल खजाना यही है, मेरे जीवन का शुभ अवसर यही है गुरु जी। अगर आप ना हाथ थामते और आप ऐसा न करते तो आज ये बच्ची मुझे लगता है कब से रुल जाती। सबने तो स्मशान घाट पहुंचाने की भी तैयारी की थी प्रभु, आपको सब पता है, लेकिन आपने उसमें से भी मुझे बचाया है गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ वो कम है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आगे भी तेरी खुशियों के दिन आ रहे हैं, तू घबराना छोड़ दे बाबा। ये खुशियों के दिन देने के लिए भी आपका शुक्राना। और आपने बोले जा ऐश कर बाबा, जो ऐश करूंगी खुश रहूंगी, उसमें भी आप मुझे मेरे साथ चाहिए दाता, उसमें भी मैं अकेली कभी नहीं खुश रहूंगी दाता, पल पल आप मेरे साथ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें परमात्मा ऐसे मिले हैं, हमें कभी नहीं कोई नहीं मिल सकता हमें, लेकिन हम सब बड़भागी हैं, हम बस पूरा संगत परिवार भाग्यवान है जो परमात्मा का सानिध्य मिला है, परमात्मा का आशीर्वाद मिला है। और हर पल हर क्षण गुरु जी महाराज हमारी रक्षा करते हैं और हर मुसीबतों से बचाते हैं। और सब संगत परिवार के बहुत गुरु जी को बहुत प्यारा है, और सब संगत परिवार को संभालते प्रभु।
आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, भगवान का नाम लेकर हम प्यारे गुरु पिता का नाम लेकर स्नान करते समय भी गुरु जी का नाम लेते लिया जाता है तो वह तीर्थ स्नान बन जाता है। संगत जी, भोजन के समय भी हम गुरुपा का नाम लेते हैं तो वह प्रसाद लंगर प्रसाद बन जाता है। संगत जी, चलते समय गुरुपा का नाम लिया और चलते समय गुरु जी का स्मरण करते हैं तो वो तीर्थ यात्रा कहलाती है। खाना बनाते समय गुरुपा का नाम लेके मंत्र जाप करके बनाते हैं तो वह महाप्रसाद हो जाता है। सोते समय गुरुपा का नाम लेके शुक्राना करके मंत्र जाप करके सो जाते हैं तो ध्यान निंद्रा बन जाती है। काम करते समय भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, महाशिव जी का नाम, प्यारे गुरु पिता का नाम लिया तो वह कर्म भक्ति कहलाती है। घर में गुरुपा का नाम लिया है, शिव गुरुपा का नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका नाम लेते ही सारे दुख दर्द भाग जाते हैं, बिगड़ी हुई तबीयत सुधर जाती है, जो मूडलेस हो जाते हैं उसमें हमें मूड आ जाता है, एक सुकून आ जाता है। सत्संग सुना के आप हमारे कितने कष्ट काटते हो गुरु जी महाराज, और सत्संग के जरिए आप हमें कितने आशीर्वाद देते हो प्रभु, उसका भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना दाता। दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना 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 प्रभु। और आप कभी हाथ न छोड़ना और जन्मों जन्मांतर हमारे साथ रहना प्रभु। जितने भी हमारे जन्म होंगे, पहले तो यही मांगते हैं कि कभी कोई जन्म ना हो, आप अपने शरण में रख लेना, लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो प्रभु सदा आप हमारे साथ रहना। गुरु जी महाराज, इस बच्ची को दुखों के पहाड़ों में से आपने बाहर निकाली है, इसको जिंदा रखी है, उसका परिवार उसको दिया है, उसको इतनी खुशियाँ दी है, उसकी झोली खुशियों से भर दी है दाता। तेरा शुक्राना 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 बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपने एक सत्संग दिया है, अभी मैं पता नहीं यूट्यूब कैसे बंद हो गया था, नेट भी लगाया तो भी नहीं हुआ। अभी लास्ट में मैं सामने वाले भाई के पास गई, भी मेरे फ़ोन में क्या हुआ है, मुझे चालू कर दो। तो आपने कहा है प्रभु ये सत्संग अभी सुनूंगी, देर हो गई है फ़ोन की वजह से, फ़ोन चालू नहीं था। एक पल की भी देरी मत कर, तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा है। तेरे ये सत्संग सुनते ही मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। उसके पहले दिया है बच्चे की मदद करने जरूर आऊँगा, रविवार की शाम उसके ऊपर भारी है। ये 2 सत्संग दिया है, पहले मैं वो सुनूंगी दाता। और ये आपको ही संभालना है, आपको ही सब करना है प्रभु। बच्चे को आप संभालो और आप उसकी रक्षा करो, और ये जो भी है तेरे परिवार पे अकाल मृत्यु का जो भी है बाबा, उसमें से भी बचा लेना गुरु जी महाराज। दोनों सुनने में टाइम तो लगेगा, मैं तुरंत ही अभी शुरू करके सुनूंगी दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, आपकी छत्र छाया में रखना, और आपकी कृपा हमेशा हमेशा परिवार पर रहे प्रभु। गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, आज सुबह तो इतना नाचूं गाऊं, क्या करूं, इतना आनंद में आपने मुझे रखा। आपने भजन इतने सुनाए, बहुत बहुत अच्छे भजन सुनाए, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, अभी भी खुश हो दाता। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप विश्व के नाथ हो, विश्वनाथ हो, आपके बिना आपकी ये बच्ची अनाथ है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। मेरी आत्मा की आवाज से, आत्मा की पुकार से आपका शुक्राना 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 दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।